حضرت یہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کتنی تھی؟ JS کیئر ہاسپٹل تو ان کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ماشاءاللہ ہمارے صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اس خوشی میں آپ کو ایک رسالہ 2 رسالے دیے جاتے ہیں۔ گھر کی شان بڑھانے والا بابا ووڈن فرنیچرز، یہاں ملے گا ہر طرح کا فرنیچر، بیڈ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل اور الماری، وہ بھی بہترین کوالٹی میں۔ بابا ووڈن فرنیچرز، جہاں بھروسہ بھی ڈیزائن بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج الحمدللہ میں محمد شکیل چشتی علیمی دیار حضور حافظ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوں، اور چونکہ سرکار حضور حافظ بخاری قدسہ سرہ الباری کا عرس مبارک اس وقت بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، کثیر تعداد میں عقیدت مندان اولیاء کرام اور خانوادہ سمدیہ سے وابستگان احاطہ نور میں حاضر ہیں اور صاحب عرس کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو زائرین تشریف لائے ہیں ان کے تاثرات کو اور ان سے جاننے کی کوشش کی جائے کہ آپ یہاں پر کب سے آتے ہیں اور کیسے آپ کا آنا ہوا، آپ کو یہاں سے کیا ملتا ہے، صاحب آستانہ کے فیض و برکات کا اظہار آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ملاحظہ کیا، محسوس کیا یا نہیں کیا؟ تو ہم اپنے زائرین سے ابھی جو ہے مختلف سوالات کریں گے، اور الحمدللہ یہ جو سید مظفر چشتی آفیشیل چینل ہے، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور جو ہے یوٹیوب پر اگر ملاحظہ فرما رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں تو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر تو ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں، اور ہماری ویڈیوز کو آگے بھی نشر کریں، دوسروں تک پیغام پہنچائیں۔ اس چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو اسلامک نالج، دینی معلومات آپ تک پہنچائی جاتی رہیں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو آئیے حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ چشتی مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور حضرت ہی سے سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ حضور کب سے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور اس کے علاوہ حضور کے تاثرات کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضور عرس حضور حافظ بخاری علیہ الرحمہ کا موقع ہے، تو حضور کب سے یہاں پر آپ تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں سے وابستہ جب حضور ہوئے تو کس کے ذریعے سے اور کیسے جو ہے اس بارگاہ ناز تک پہنچنا ہوا حضور کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس آستان عالیہ سمدیہ دارالخیر پھپھون شریف سے ہمارا تعلق اور غلامی کا ہمارا رشتہ جو ہے، یہ ہمارے والد ماجد مرحوم محمد ریاض الدین کے زمانے سے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے والد ماجد بھی اسی بارگاہ کے غلام اور اسی بارگاہ کے بھکاری تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ہم لوگوں کو اس آستان شریف کی راہ دکھائی، اور یہاں کے صاحب سجادہ مرشد برحق سرکار اکبر المشائخ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں اس گناہگار کو میرے والد ماجد نے اپنی زندگی میں ہی داخل کروا دیا۔ اسی وقت سے الحمدللہ رب العالمین اس آستان شریف کی حاضری کا پابند ہوں، اور یہاں کی عقیدت، یہاں کی محبت، اس خانوادے کے جمیع حضرات کی عقیدت و محبت الحمدللہ رب العالمین ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہمارے رگو پے میں رچی بسی ہے۔ حضرت ہر بزرگ شخصیت کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کے والدین کا کردار چھپا ہوتا ہے، ان کی قربانیاں پنہاں ہوتی ہیں۔ تو آج حضور حافظ بخاری علیہ رحمۃ الرضوان کے والد گرامی کے حوالے سے حضور کچھ ارشاد فرمائیں۔
سرکار حافظ بخاری قبل عالم عالم علماء زمانہ سید المفسرین سند المحدثین حافظ کلام باری و صحیح البخاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے والد ماجد کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اور میں آپ تمامی حضرات کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ بخاری شریف جس کو قرآن کریم کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل کتاب مانا گیا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری فرمایا گیا، اور حضور قبل عالم سرکار خواجہ عبدالصمد چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اس بخاری شریف کے دونوں جلدوں کے حافظ تھے، اور آپ اکابر اسلاف مشائخ کے حیات طیبہ پر نظر ڈالیے، مطالعہ کیجئے کتابوں کا، اسلاف و اکابر اور مشائخ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، تو ہمارے اکابر ہمارے اسلاف بے شمار خوبیوں کے حامل ملیں گے، لیکن بخاری شریف حفظ کرنے کی اگر سعادت کسی کو ملی ہے تو وہ سرکار خواجہ عبدالصمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے اس فضل خاص سے سرکار حافظ بخاری قبل عالم سرکار خواجہ عبدالصمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا تھا۔ اب رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ آپ کے والد ماجد کے تعلق سے، تو آپ کے والد ماجد شہید فی الکونین حضرت سید غالب حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کا ایک بڑا معروف و مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب 1857 میں ہمارے عزیز ملک پیارے وطن ہندوستان میں انگریزی سامراج کا قیام ہوا، انگریزوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا اور ہمارے ملک پر قبضہ کیا، تو اس وقت جب انگریزوں کے خلاف 1857 میں ایک مہم چلی، انگریزوں سے ملک کو خالی کرانے، ملک کو آزاد کرانے کی مہم چلی، تو جہاں ہمارے بے شمار اکابر اسلاف ائمہ علماء نے اپنی قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو وہیں حضرت سید غالب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار حافظ بخاری کے والد ماجد ہیں، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور آپ کے واقعات میں یہ روایت میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف انگریز حکمرانوں تک یہ مخبری کر دی، یہ شکایت کر دی کہ یہ لوگ بھی جو ہے آپ لوگوں کے مخالف ہے، تو پھر انگریز افسر نے آپ لوگوں کو گرفتار کروایا، اور گرفتار کروانے کے بعد سرسری طور پر انگریز افسر کے عدالت میں مقدمہ چلا، اور مقدمہ چلنے کے بعد میں چند لوگوں کو بری کر دیا گیا، باقی سب کو سزائے موت سنائی گئی، اور سزائے موت کا فیصلہ ہونے کے بعد میں پھر انگریز افسر نے ان سب کو موت کی سزا دینے کے لیے ایک لائن سے کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد میں سب کو گولی ماری گئی۔ حضور حافظ بخاری کے والد ماجد حضرت سید غالب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بقیہ لوگ جو تھے وہ سب ایک ہی گولی میں بیچارے شہید ہو گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، لیکن حضرت سید غالب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انگریز افسر نے 2 گولیاں اور ماری، 2 گولیاں اور مارنے کے بعد بھی حضرت سید غالب حسین کی شہادت نہیں ہوئی۔ آپ نے پھر اس انگریز افسر کو مخاطب کیا اور اس سے ارشاد فرمایا، سنو، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا، یہ فریاد کی ہے، یہ دعا کی ہے کہ مجھے تلوار کی موت نصیب ہو، تلوار سے شہادت نصیب ہو۔ تو اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اگر تلوار سے قتل کرو گے تبھی مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ چنانچہ پھر اس انگریز افسر نے تلوار سے آپ کو قتل کیا، اس طرح آپ کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا، شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ اور آپ کے اس واقعے نے ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس ملک کی آزادی میں جہاں دیگر ائمہ اور مشائخ اور اسلاف اور علماء نے قربانیاں پیش کی، وہیں سرکار حافظ بخاری قبل عالم صدر مجلس علماء اہل سنت سرکار خواجہ عبدالصمد چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد اور آپ کے خانوادے نے بھی اس ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، حتیٰ کہ آپ کے والد نے اپنی جان کا نذرانہ بھی اس ملک کی سالمیت،
اس ملک کی حفاظت, اس ملک کی بقا اور اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. یہ سرکار حافظ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا ایسا عظیم کارنامہ ہے جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل. اور جب حضرت سید غالب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی, اس وقت حضور حافظ بخاری قبل عالم سرکار خواجہ عبدالصمد چشتی پھپھوندوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف فقط 5 سال کی تھی. اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے شہید فی الکونین حضرت سید غالب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ نے نہایت قسم پرسی کے عالم میں چرخے سے سوت کاٹ کر کے اس سے جو مختصر سی چند پیسوں کی آمدنی ہوتی تھی, اس سے جو ہے آپ نے سرکار حافظ بخاری کی پرورش فرمائی. اور پھر آپ کے رزق حلال کی برکت کا عالم یہ ہوا کہ آج سرکار حافظ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ افق آسمان پر حافظ بخاری اور بے شمار فضائل و کمالات کے حامل بن کر کے آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہے ہیں. آپ کا فیضان اس آستانے سے آفتاب و مہتاب کی طرح جاری و ساری ہے. بہت اچھی بات حضرت آپ نے ارشاد فرمائی اور ہم سب کی معلومات میں اضافہ فرمایا. ہم میں سے بہت سارے تقریباً 90% ایسے لوگ ہیں حضرت جو حضور کے والد گرامی کے اس واقعے سے باخبر نہیں تھے. آپ نے ہم سب کی معلومات میں اضافہ فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم سب پر دراز فرمائے. اور حضور آج کل ایک تنگ نظری کا ماحول ہے حضور, اور ہم اپنے ہی ملک میں دوئم درجے کے شہری قرار دیے جا رہے ہیں حضور. تو اس طرح کی جو لوگ بکواس کر رہے ہیں حضور, ان کے لیے کوئی پیغام محبت آپ؟ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور مسلمان 2 نمبر کا شہری ہے ہی نہیں. جب مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا, تو 2 نمبر کا شہری یہ مسلمان اس ملک میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ تعصب پرست ذہنیت ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس طرح کی باتوں سے محفوظ رکھے. اور نوازش, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اور بھی ہمارے ناظرین زائرین ہیں, میں ان سے بھی گفتگو کروں گا. اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس پیج کو, سید مظفر چشتی آفیشیل پیج کو ضرور جو ہے فالو کریں. اگر یوٹیوب پر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. اس کے علاوہ انسٹاگرام وغیرہ پر اگر آپ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں تو وہاں بھی ہمارے اس پیج کو ضرور فالو کریں, تاکہ روزانہ آپ کی دینی و علمی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہے. اور بھی کچھ زائرین ہیں, میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. میرے سامنے جو ہے قاری شفیق صاحب ایک نظر آ رہے ہیں حضرت, میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جاننے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم حضرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت جو ہے کب سے تشریف لا رہے ہیں اور آستانِ شریف سے کب سے وابستگی آپ کی ہوئی؟ میری اس آستان پاک سے وابستگی حضور اکبر المشائخ علیہ رحمہ جب نانپارہ کے سرزمین پر تشریف لے گئے تھے, آخری سفر تھا حضرت کا, تب غالباً سن 2005 کی یا 4 کی بات ہے. اس وقت میں حضرت کے ہاتھوں پر بیعت ہوا تھا. اچھا ماشاءاللہ. تب سے غالباً میرا آنا جانا یہاں لگا رہتا ہے. حضور کی نظر عنایت ہوتی ہے, خادم گناہگار آتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو حضرت یہاں حاضر ہونے کے بعد اولیاء کرام کی بارگاہ ایسی ہوتی ہے کہ دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے. آپ اپنی کیفیت کا احساس کیسے کرتے ہیں؟ اپنی کیفیت کا احساس یہ ہے کہ حضور کے نظریں خاص کچھ اس گناہگار پر اس طرح ہیں کہ سب سے اول بات یہ ہے کہ جب سے میں حضور کے اکبر المشائخ کے ہاتھوں پر بیعت ہوا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری دنیا آٹومیٹک بدل گئی ہے. اس کا احساس یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی وقت کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے آج بہت بڑا کوئی نقصان ہو گیا ہے, جب تک میں اس نماز کو ادا نہ کر لوں.
سب سے بڑی حضور کی کرامت مجھ پر یہی ہے. اس کے بعد میں تو تمام تر حضور کی کرامتیں مجھ پر ہیں. نظر خاص عنایت ہے. اس گناہگار پر نوازشیں ہیں کہ خادم بیان نہیں کر سکتا ہے. یہ قاری شفیع صاحب قبلہ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ حضرت سے مرید ہونے کے بعد ایک بڑی تبدیلی ہمارے اندر یہ پیدا ہوئی کہ الحمدللہ ہم پکے نمازی ہو گئے. میں اپنے زائرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اولیاء کرام سے محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی روش پر چلا جائے. اگر ان کی روش پر چلنے کے بجائے آپ دوسری راہ پر چلیں اور محبتوں کا دم بھریں تو یہ صحیح معنوں میں محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو فریب اور دھوکہ ہے. ہمارے اکابرین میں سے، ہمارے بزرگان دین میں سے، بالخصوص خانوادہ صمدیہ کے ہمارے مخدومین میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے جو ہے نماز چھوڑی ہو. اور بالخصوص حضور اکبر المشائخ علیہ الرحمۃ والرضوان اور اس وقت حضور مجاہد سنیت حضور سیدی سرکار اختر میاں صاحب قبلہ دامہ ظلہ الاقدس اور دیگر مخدومین الحمدللہ نماز کی پابندی کرتے ہیں. اور نماز کی پابندی جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں بہت ساری بھلائیاں اللہ عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا فرماتا ہے. تو آپ حضرات اگر یقیناً خانوادہ صمدیہ سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور یقیناً آپ رکھتے ہیں، تو ان محبتوں کا بھرم رکھیے اور اپنے بزرگان دین اور اپنے مشائخ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اور آخرت کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش فرمائیں. ایک صاحب اور ہیں، میں ان سے کچھ باتیں جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. اچھا قبلہ آپ اپنا نام بتائیں. محمد افتخار حسین چشتی. کہاں سے ہیں آپ؟ شریف سے. ارے واہ سبحان اللہ، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے حضور کے حصار میں ہیں، دائرہ رحمت میں. حضور ہمیں جو غلام بنا کے رکھا ہے کون ہے یہاں کا، اور یہ خدمت ہے ہم لوگوں کو کھانے کی میرے باپ دادا کرتے رہے. اچھا ہم لوگ بھی کر رہے ہیں 40 سال سے، 55 سال 40 سال سے ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. بچے بھی انشاءاللہ بالکل بچے بھی یہ خدمت کو انجام دیتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کے قدموں سے وابستہ رکھے اور انہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. اور حاج صاحب قبلہ آپ الحمدللہ آپ کی ایک اچھی خاصی عمر نظر آ رہی ہے، تو آپ نے اپنے بچپن سے کچھ ایسے واقعات جو آپ نے دیکھا ہو اپنے، ان میں سے کوئی ایک واقعہ ذکر کریں جس سے ہم لوگوں کے دلوں میں مزید محبت اجاگر ہو. بزرگوں کے اندر جو خوبیاں آپ نے دیکھی جو قابل بیان. خوبیاں کا وہ اتنی خوبیاں ہیں ایسے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں ہم سے. اور یہ تو کرم ہے سرکاروں کا ہم لوگوں کے اوپر خاص طور سے، یہ سبھی پہ آتے ہیں یہاں انشاءاللہ. اور بہت سے واقعات لیکن کچھ خیر ہوتا ہے انشاءاللہ. چلیے بہت شکریہ، آپ نے جو ہے اپنا تاثر پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. میں کچھ اور لوگوں سے جاننے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے میں اپنے زائرین سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ جو پیج ہے سید مظفر چشتی آفیشیل پیج، اس کو ضرور فالو کریں. اور اگر آپ یوٹیوب پر ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی علمی معلومات میں اضافہ ہو. اور اس کے علاوہ حافظ ٹور اینڈ ٹراویلز جو معتمرین حضرات اور حجاج کرام کی خدمت کرتا ہے، آپ میں سے جن حضرات کو یہ سعادت حاصل کرنی ہو کہ حرمین شریفین کا سفر کرنا ہو تو حافظ ٹور اینڈ ٹراویلز بھدوہی گوپی گنج، تو رابطہ فرمائیں ان سے اور عمدہ سہولیات کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے اپنے اس مبارک سفر کو تکمیل تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج صاحب اللہ کہاں سے تشریف لائے؟ میں اٹاوا سے آیا ہوں. ماشاء اللہ. حج صاحب کب سے آپ جو ہے یہاں کے خادم اور غلام ہیں، وابستہ ہوئے؟ جب سے آستانہ ہے، جب سے غلام و خادم ہے. حضور حافظ بخاری کے زمانے سے غلام ہے. اچھا ہمارے دادا جو تھے
पहले गैर मुकल्लिद थे, बड़े बदबूदार थे। जी जो हुजूर हाफिज बुखारी का करम है, फैजान है, उनके सदके तुफैल से आज हम लोग बिल्कुल सही सुन्नी सही अकीदत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फैज और करम है, और उसका एहसान है। पाक में आज के इन बुजुर्गों का बहुत बड़ा एहसान है और करम है, जो आज हम लोगों को ऐसी जगह पे हम लोग को वाबस्ता कराया है। बेशक बेशक। और हमारी नस्लें जो है 6वीं पीढ़ी में है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से वाबस्ता है। हाँ, आपने एक बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई कि जुड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत महफूज है, हमारा ईमान महफूज है। तो मैं अपने ज़ायरीन से भी गुजारिश करूंगा कि बुजुर्गों से वाबस्ता होने पर सबसे बड़ा एक फायदा ये होता है कि उनकी सोहबतों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अपना महफूज होता है। ईमान महफूज है इन बुजुर्गों के सदके बेशक, में, बेशक। और इन बुजुर्गों के कदमों से हम लोग लगे हैं, उसका ही फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, और जितने आने वाली नस्लें हैं ता क़यामत तक हम लोग इस तरह के गुलाम रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अल्लाह करम है हुजूर हाफिज बुखारी का, और दर पीढ़ी हमारा सिलसिला इंशाल्लाह ता क़यामत तक चलता रहा। ये हमारे बुजुर्गों का करम है और एहसानी कौल है बुजुर्गों का, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ायरीन, ऐसे माहौल में जबकि ईमान के लुटेरे दर बदर घूम रहे हैं, नए नए फितनों का आगाज हो रहा है, ऐसे माहौल में ये चीज़ हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम किसी अल्लाह के वली के साथ हो जाएं। कुरान में अल्लाह का हुक्म भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो यही सच्चे लोग हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। सीधा रास्ता सिरातल मुस्तकीम तक जाता है। क्या बात है, क्या बात है। यही सिरात मुस्तकीम है और यही जन्नत तक ले जाता है। जन्नत तक ले जाने बेशक। वाले, यही हमारी बख्शिश कराने वाले, यही सब कुछ इनके सुपुर्द है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। लाला हज़रत ने लिखा है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो हम सबको भी ये सुराग लेकर के चलना चाहिए और अपने ईमान की हिफाजत का सामान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, और कुछ ज़ायरीन हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में लोग साहिब उर्स के फीज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए आस्थाना शरीफ पे हाजिर आए हैं। मैं जो है कुछ लोगों से और तासुर लेने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद सद्दाम, कहाँ से तशरीफ लाए आप? अकबरपुर, अकबरपुर। जिला क्या है? कानपुर दियात। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो कब से यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, अब हाजिर हो रहे हैं? फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो आपके माँ बाप में से कोई यहाँ से पहले से जुड़ा हुआ था? अच्छा, दादा हैं, चाचा भी हैं, अरे वाह वाह। और मेरे फूफा भी जी हैं, हाफिज जी हैं, जी, अरमान हाफिज जी है, इधर ही मदरसा भी पढ़े हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ आने के बाद आपने दिल की दुनिया में क्या तब्दीली देखी? बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिरी के बाद आपने क्या सुकून महसूस किया, उसके बारे में कुछ हमारे ज़ायरीन को बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी। लाइफ में फर्स्ट टाइम इधर आया, जी। तो अच्छा भी लगा, खाने पीने का अच्छा इंतजाम भी था। जी। और क्या है, सब ऊपर वाले कदम इतना उर्स की सबसे खास बात क्या लगी आपको? उर्स की ये लगी ज्यादा कुछ कव्वालियाँ ये सब नहीं, खाली नॉर्मल अपना सब चीजें अच्छी तरह से है। हाँ, खवातीन वैसा होता है कि उर्स में वो उर्स नहीं रह जाता है, मेला हो जाता है, इतनी खवातीन होती हैं। लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये महसूस किया होगा कि कोई एक औरत नहीं मिली अभी तक के। अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्स हुजूर हाफिज़ बुखारी के उर्स की इम्तियाजी शान है कि किसी भी औरत को उर्स के दिनों में खानकाह शरीफ के अंदर दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं दी जाती है। ये हुजूर हाफिज़ बुखारी के उर्स की एक इम्तियाजी शान है। और बहुत सारे ज़ायरीन हैं, मैं अपने ज़ायरीन से अब कुछ सवाल भी करेंगे और साथ ही साथ जवाब देने पर, अच्छा जवाब देने पर, सही जवाब देने पर उनकी बारगाहों में हम कुछ तोहफा भी सैयद मुज़फ़्फ़र चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से जो है पेश करने की कोशिश करेंगे। आइए, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? जी दुआ। क्या नाम है आपका? परवेज। परवेज नाम है। कहाँ से आप तशरीफ लाए हैं? चलिए, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, मैं जो है आगे बढ़ता हूँ और अपने ज़ायरीन से बात करने की कोशिश करते हैं। ज़ायरीन, अभी लंगर शरीफ का प्रोग्राम चल रहा है, लोग खाना तनाउल फरमा रहे हैं, तबर्रुक जो है
तनाउल कर रहे हैं इहाते नूर में बैठ करके, तो ज़ायरीन के खाने में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बाकी बाहर जो लोग हैं उनसे हम इंशाअल्लाह ताला बात करने की कोशिश करेंगे और उनके तासुरात को सुन करके इंशाअल्लाह ताला महजूज होंगे और फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा साल आने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मोहतरम ज़ायरीन, इस हमारे पेज को ज़रूर आप फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सैयद मुज़फ़्फ़र चिश्ती ऑफिशियल को जो है आप सब्सक्राइब करें, इसलिए कि ये चैनल ऐसा है कि जो रोज़ाना कुछ ना कुछ नई मालूमात, दीनी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है और आपके इल्म में और आपकी दीनी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश करता है। औलिया किराम की बारगाहों में यकीनन हाजिर होने के बाद दिल की दुनिया बदल जाती है, एक अजीब कैफियत होती है, दिलों की कुदूरत और गुनाहों की जो गंदगी है वो गंदगी साफ होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सदक़े में हम सबको गुनाहों से बचाता भी है और इन्हीं के तवस्सुल से अल्लाह ताला हम सबकी ईमान की हिफाजत भी फरमाता है। और यहाँ एक साहब खड़े हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या नाम है भाई? मुबीन अली। मोइन अली। कहाँ से आप तशरीफ लाए हैं? टीकमगढ़। टीकमगढ़ से। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे? काफी अभी 2 साल हुए। अच्छा अच्छा, तो आप पहली मरतबा आप जुड़े हैं कि आपके आबा व अजदाद में से कोई यहाँ की गुलामी में शामिल था? बहुत पुराना अच्छा से मैंने दादाजी के समय से। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने शुरू से आना जाना वही है। उर्स में आने के बाद सबसे खास बात आपको क्या लगी हुजूर हाफिज बुखारी के उर्स की, जो आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती हो कि हाँ ये एक यूनिक चीज है? क्या है कि वो देखो अब शुरू से चली आ रही है, उसको आना जाना यहाँ। तो पहले दादाजी थे, वो आते थे, तो उस टाइम बहुत छोटे थे। अब हालांकि वो उनकी डेथ के बाद अब आना शुरू मैंने किया और मेरे भाई लोग भी आते हैं, मैंने तो उनके साथ आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। आप चूंकि हुजूर हाफिज बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु के उर्स में तशरीफ लाए हैं, ये आपकी सादत बंदी, हम सब की सादत बंदी है, लेकिन हुजूर हाफिज बुखारी आलम उलमा ज़माना थे, अपने वक्त के उलमा में भी जो है बड़े पाए के आलिम थे। तो आपसे एक शरई सवाल मैं करूंगा और आप अगर उसका सही जवाब दें तो मैं आपकी बारगाह में अपने सैयद मुज़फ़्फ़र चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से आपकी बारगाह में कुछ पेश करने की भी सादत हासिल करूंगा। आप ये बताएं कि अरकान इस्लाम कितने हैं? अभी ये तो नहीं पता। अच्छा, नहीं पता, हासिल करने की कोशिश करेंगे। अरकान इस्लाम 5 हैं। जी 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 जी, मैं अर्ज कर दूं कि अरकान इस्लाम मतलब इस्लाम की जी जी। अच्छा चलिए, ये एक दूसरा सवाल आसान सा, ईशा में कितनी रकातें होती हैं? ईशा में 17। माशाल्लाह, आपने सही जवाब दिया। फजर में कितनी रकातें आप पढ़ते हैं? 4। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपने सही जवाब दिया। मैं कुछ अभी आपकी बारगाह में एक तोहफा पेश करने की कोशिश करूंगा और आपको आप तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह ताला में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा अता फरमाए। इसमें मेडिकल कैंप में चल रहा है, आप उनसे पूछिएगा कि आप क्या मतलब कैंप लगाए हैं, अब तक कितने जी मरीज जी जी हो चुके हैं, कितने जग चुके हैं, कैसी दवाइयाँ क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उर्स हाफिज बुखारी में ज़ायरीन के लिए खाने पीने, उठने बैठने, सोने से ले करके दवा और इलाज का भी इंतज़ाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उर्स हुजूर हाफिज बुखारी की के उर्स की खुसूसी शान है, इम्तियाजी शान है और कोई ऐसा नहीं कि पैसा लेकर के दवा की जाती हो। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सब कुछ मुफ्त हुजूर हाफिज बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से मिल रहा होता है और उनका सदका जो है लोग खा करके अपनी दीन और अपनी दुनिया संवार रहे हैं।
تو میں یہاں مطب میں آیا ہوں. یہاں ہمارے سامنے کچھ ڈاکٹر حضرات ہیں جو زائرین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کی بیماریوں کو سن کر کے ان کا صحیح علاج جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنے ایک ڈاکٹر صاحب سے جو ہے بات کروں گا کہ کب سے وہ آئے ہیں اور یہ اسٹال کب سے لگا ہوا ہے اور کب سے یہ خدمت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے تشریف لائے ڈاکٹر صاحب آپ؟ ہم ننپرا ڈسٹرکٹ کے بہرائچ سے آئے ہیں. کتنے دن ہو گئے آج آئے ہوئے؟ 3 دن ہو گئے آئے. 8 تاریخ کو آئے تھے 9-10. ٹھیک ہے. اور یہ ہم لوگ 4 سال سے کیمپ کر رہے ہیں. حضور حافظ بخاری کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے آئے ہوئے مہمانوں کی سیوا کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مہمانوں کو خدمت کی جائے, جو تکلیف ہے دور ہو جائے اور پریشانیاں ہم لوگوں سے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ خدمت میں ہمیشہ خدمت میں لگے رہتے ہیں. ابھی تک تقریباً ڈاکٹر صاحب یہ اباؤٹ کتنے مریض آ چکے ہوں گے آپ کے پاس؟ ابھی تک لگ بھگ ہمارے کیمپ سے 1200 کے آس پاس مریض جو ہے آ چکے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا ہے 1200 کے آس پاس. اچھا ماشاء اللہ, یعنی اس کا ڈیٹا بھی محفوظ رکھتے ہیں آپ؟ اچھا اچھا, ایک چیز کا سب ڈیٹا ہے کے ساتھ میں کوئی آئے تب اس کو چیزیں مل جائیں گی. اچھا اچھا. اور آپ حضرات جو ہے, اچھا یہ کہاں سے آپ کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوا کہ ہم لوگوں کو اللہ نے ڈاکٹر بنایا ہے تو چلیں جن کے در سے سب کچھ ملا ہے تو ان کی بارگاہ میں ان کے آئے ہوئے مہمانوں کی ہم سب خدمت کریں. اللہ نے ہاتھ میں ایک ہنر دیا ہے اور یہ خدمت خلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو کب یہ خیال دل میں آیا اور کس نے اس بات پر ابھارا؟ یہ ہم سب لوگ بہت چھوٹے تھے تب سے خدمت کر رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں, لیکن پہلے کھانا پینا کھلانے کا کام کر رہے تھے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار کے دعاؤں سے اور کرم سے ہم لوگوں کو یہ عہدہ دیا اور اس میں ہم لوگ جب سے لگے تو دل میں بار بار ابھر کر آتا تھا کہ ہم لوگ بھی خدمت کریں, جو ہمیں ملا ہے اس کو سرکار کی بارگاہ میں اپنی خدمت کو پیش کریں. پھر سرکار کے یہاں سے حکم ہوا کہ آپ سب لوگ آئیں اور اپنے خدمت کو انجام دیں, اور ہم لوگ اپنی غلامی کا سبب یہاں لگ گئے ہیں اور اپنی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کسی مریض کی ہیلپ کرنے کے بعد آپ جو ہے کیسا سکون محسوس کرتے ہیں؟ میں بہت زیادہ سکون محسوس کرتا ہوں کیونکہ عرس حافظ بخاری میں خدمت کرنے کا موقع ملا ہے, اس لیے ہم سبھی لوگ خدمت کے لیے ہی آئے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا اچھا علاج کر سکے. اچھا اچھا ماشاء اللہ, یہ بہت بڑی مدد ہے. حدیث پاک میں ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ بندہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے, اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. تو یہ ہمارے مہمان تو نہیں لیکن حضور حافظ بخاری کے مہمان ہیں. ہم اپنے مہمان کی خدمت کریں تو اللہ اتنا بڑا اجر دیتا ہے, اور اگر کسی اللہ حوالے کے مہمان کی خدمت کریں تو سبحان اللہ کیا اس کا ثواب کتنا بڑا ہوگا. بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا عطا فرمائے اور صاحب عرس کے فیض و برکات سے آپ سب کو مالا مال فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا اپنا تعارف پیش فرمائیں. جی میرا نام ڈاکٹر ذاکر حسین گوالیئر سے ہوں میں. اچھا ماشاء اللہ. اور یہ جو کیمپ ہم لوگوں نے لگایا ہے تو ہمارے جو حضرت لوگ ہیں ان کی ہمیشہ ایک فکر رہتی تھی کہ ہمارے جو زائرین آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, تو کبھی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں, دور سے آتے ہیں, کبھی کوئی پریشانی میں گر جاتے ہیں, کوئی گر جاتے ہیں, اچانک کوئی جل جاتا ہے, تو حضرت کو بہت فکر رہتی تھی اپنے زائرینوں کی, مہمانوں کی. جی جی. تو حضرت نے ہم لوگوں کو کہا کہ اس طرح کا کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس لیے پھر ہم لوگوں نے سب نے میٹنگ کری اور حضرت نے ہم لوگوں کو پورا سب بتایا کہ ایسے سے سب کام کرنا ہے, آپ کو کیمپ میں بیٹھنا ہے, اپنا ٹائم دینا ہے 2-3 دن کا. تو یہ ہم لوگوں کا مطلب یہاں بیٹھ رہے ہیں, ہماری اس میں کچھ نہیں ہے, یہ بزرگوں کا کرم ہے کہ ہمیں چن لیا اس کام کے لیے. ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے زائرینوں کی. جو زائرین خوش رہیں گے تو حضرت لوگ بہت خوش ہوئیں گے, ان کو بہت تسلی ملتی ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, بڑے نصیب کی بات ہے ماشاء اللہ. تو پھر آپ حضرات یہاں چلے آتے ہیں تو آپ سب کی کلینک پہ وہاں کون ہوتا ہے؟ وہ سب جو بزرگ سب دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی سب کچھ چھوڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں. چلیے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ بہت کامیاب فرمائے اور اسے
हुजूर हाफ़िज़ बुखारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको वाफिर हिस्सा अता फरमाए। आपके पास आने वाले मरीजों को अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और आप सबकी कमाई में अल्लाह बरकतें दे। बहुत शुक्रिया, आप हज़रात ने थोड़ा टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और कुछ ज़ायरीन से हम आगे बात करने की कोशिश करते हैं। मोहतरम ज़ायरीन, नाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, औलिया अल्लाह की क्या शान होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कितना बड़ा मकाम अता फरमाता है कि वो ज़िंदगी में तो अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाते ही रहते हैं, लेकिन दुनिया से बज़ाहिर रुखसत होने के बाद उनका फैज़ान जो है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ज़्यादती के साथ और बढ़ चढ़ करके जो है मखलूक खुदा पर जो है उनका फैज़ान जारी होता है और लोग फैज़याब होते हैं। जाहिर है इतनी तादाद में लोगों का आना ये बताता है कि यहाँ से कुछ ज़रूर मिलता है, वरना हज़ारों की तादाद में लोगों का आना और जो है यहाँ 2-3 दिन वक्त देना, ये कोई बेवकूफ़ नहीं है। इनको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है तभी आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का अकीदा ये है कि अल्लाह की अता से ये सब कुछ अता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और भी कुछ जो है नाज़रीन हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ आने के बाद क्या तब्दीलियाँ महसूस हुई और कैसा असर महसूस कर रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रतुल्लाह, नाम अपना इरशाद फरमाएं। मेरा नाम शब्बीर खान मिसबाही है। सुभान अल्लाह। मिसबाही यानी हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज की मुरीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी 3 पुश्तें यहाँ की गुलाम हैं। क्या बात। मेरे परदादा, मेरे दादा और मैं भी, इंशाल्लाह मेरी औलाद भी। अच्छा अच्छा, तो आप अपनी औलाद को लाते हैं साथ में। सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छा करते हैं। आजकल हमारी औलादें भी जो है बुजुर्गों से दूर होने की बुनियाद पर गुमराह हो जाती हैं। तो नाजरीन हमारे जो हैं, जो साहिब औलाद हैं, उनसे मैं ये गुजारिश और करना चाहूँगा कि आप तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से वाबस्ता हैं, किसी बुजुर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अपने बच्चों को भी उसी रविश पर लाने की कोशिश कर, बचपन ही से जो है उनकी आदत बनाएं कि बुजुर्गों के पास उनको ले जाएं, उल्मा से उनकी मुलाकात कराएं, अच्छी महफिलों में बैठें, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी जिंदगी में भी यही इनकलाब पैदा होगा। होता यह है कि हम तो फैजान हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बुजुर्गों से, उल्मा से दूर होने की बुनियाद पर वो बहक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हाजी साहब ने अभी कही कि मैं जो है अपने साथ अपने बच्चे को लेकर के आया हूँ और आइंदा मैं उम्मीद करूंगा कि आप इंशाल्लाह लाते रहेंगे, है ना। इंशाल्लाह। हम तो इतने बहुत छोटेपन से, हमारे दादा दादी लाते थे मुझे जी, कंधे पे, मतलब गोदी में लेके आते थे। अच्छा अच्छा। मेरी दादी और दादा, मेरे 2 भाइयों को मैं भी गोदी में लेके आता था, मेरे दादा भी एक छोटे भाई को गोदी में लेके आते थे। अच्छा, जब यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पे खंडहर पड़ा हुआ था, तब यहीं से निकलना होता था। मैं तब से आ रहा हूँ, आज से 50 साल हो गए। मेरी उम्र तकरीबन 59 साल है। सुभान अल्लाह। तो बच्चों को यही तालीम देते हैं आप। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है यही कि इन बुजुर्गों से वाबस्ता हमेशा रहें और रसूल की मोहब्बत इनके सीने में बराबर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। बस यही चाहते हैं कि मेरी पुश्तें दर पुश्तें रसूल की दीवानी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो यकीनन ये दर्द अगर दिल में घर कर जाए तो फिर क्या कहने हैं, है ना। और इस दर्द का जो मजा है उसको लफ्जों का पैरहन नहीं पहनाया जा सकता और लफ्जों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। असाकुल्ला, आप, मैं देख रहा हूँ कि मोहब्बतों में आपके आंसू हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों का सदका आपको अता फरमाए और बुजुर्गों के फैजान से माला माल फरमाए। आप भी बरखुदार। क्या नाम है आपका? जी, गुलाम अब्दुल कादिर। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। कब से तशरीफ ला रहे हैं आप अपने वालिद साहब के साथ में? अभी तो आ जाए, अभी अपने इससे पहले साल भी आ चुके हैं आप? जी। अच्छा अच्छा। मैं कुछ एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, उसका सही जवाब देने पर इंशाअल्लाह ताला हम चैनल की जानिब से आपकी बारगाह में कुछ तोहफा पेश करेंगे। आप ये बता दें कि इशा की नमाज में कितनी रकातें हैं?
17। माशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करते हैं आप? हाँ, जरूर नमाज पढ़े। बुजुर्गान दीन से मोहब्बतों का सबसे बड़ा है ना तकाजा ये है उनकी मोहब्बत का कि हम सब जो है वही काम करने वाले बन जाएं जिससे अल्लाह उसके रसूल खुश होते हैं। नमाज या अहमुल इबादत है, इसको जिंदगी में कभी छोड़ने की कोशिश ना करें। अल्लाह से तौफीक भी मांगा करें और जो है दुआ भी किया करें। आपने सही जवाब दिया, अभी इंशाअल्लाह ताला आपका तोहफा, आपका इनाम जो है आपकी बारगाह तक पहुंचा दिया जाएगा। आपने वक्त दिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फरमाए। मैं अपने तमाम ज़ायरीन से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर मुलाहजा कर रहे हो हमारी वीडियो तो सब्सक्राइब कर लें। और जी, ये अभी जो आप देख रहे हैं लाइन लंबी लंबी, ये लंगर खाने की लाइन है टिकट की। उर्स हाफ़िज़ बुखारी की एक इम्तियाजी खुसूसियत ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हुए तमाम ज़ायरीन के लिए कई हजार की तादाद में क्यों ना हो, लेकिन सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतजाम किया जाता है। उम्दा से उम्दा खाना, सुबह नाश्ता भी और दीगर तरह की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाती हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी इस वीडियो में कि ज़ायरीन की एक लंबी कतार लगी हुई है। आज ये 3 दिनों से ये सिलसिला शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ से टिकट हासिल करते हैं और हुजूर सय्यदी सरकार ख्वाजा अब्दुल समद चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लंगर को तनाउल फरमा करके जो है अपने अंदर एक ताजगी महसूस करते हैं, अंदर को आप रोशनी बख्शते हैं। और ये भी बता दें कि ये टिकट जो है ये कोई कीमत लेकर के नहीं दिया जाता है, बल्कि ये टिकट मुफ्त में दिया जाता है। सिर्फ आदाद शुमार का हिसाब रखने के लिए इस टिकट को जारी किया जाता है और किसी से कोई चार्ज, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना कोई डिमांड किया जाता है। बस लोग मोहब्बतों में और अकीदतों में अपने मखदूमीन की बारगाह में कुछ नजर व नियाज पेश कर दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी किसी से पैसे वगैरह के हवाले से कोई सवाल नहीं किया जाता है। मुफ्त में अच्छा से अच्छा खाना खिलाया जाता है, ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। तो अब हम थोड़ा इहाता नूर से बाहर जाकर के रोड पे कुछ ज़ायरीन जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए गेट पर हमारे 2 नौजवान जो हैं खड़े हैं और इन नौजवानों की ड्यूटी सिर्फ ये है कि चलते फिरते रहिए, गेट के सामने ये जो गेट कीपर हैं वो 3 दिन तक मुसलसल बेचारे ये ड्यूटी देते हैं कि कोई नंगे सर दाखिल ना होने पाए और जो है कोई खातून ना आने पाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़ायरीन के लिए चूंकि कई हजार की तादाद में पब्लिक होती है तो होता ये है कि चप्पलें उतारने के बाद ऐसा नहीं कि कोई ले जाता है, लेकिन कदमों की ठोकर लगी तो यहाँ से वहाँ चप्पलें पहुँच जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हाफ़िज़ बुखारी अलैहिर्रहमा और खानवादे समदिया के शहजादगान और यहाँ के मखदूमीन जो हैं उनसे मोहब्बत और अकीदत रखने वाले ये चप्पल का एक फ्री जो है चप्पल जमा करने का एक स्टैंड बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग दिनों रात जो है ज़ायरीन की खिदमत करते हैं और लोगों को उनकी चप्पलें पहुंचाते भी हैं, उसकी हिफाजत भी करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत की बात है। आज से नहीं है, ये हमारे बाप दादों के जमाने से खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ से आप रहने वाले हैं? और कुछ लोग हमारे दलील नगर के रहने वाले हैं। ये पुश्तैनी काम है हमारे बाप दादाओं का। सुभान अल्लाह। पैसा लगता नहीं है, ये आस्थाने की तरफ से बुजुर्गों के कर्म से यहाँ खिदमत होती है। क्या बात, नो पैसा लगता, कोई पैसा नहीं। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बिल्ला यहाँ लगा रहता है बैनर, यहाँ कोई पैसा नहीं, जूते उतारिए। पैसा नहीं है, मुर्शिद का करम है जी। ये उनकी देन से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ और उनका ही सब करम। बेशक बेशक, अल्लाह वालों ही के सदक़े में अपना काम बनता है।
उन्हीं के दर के हम सब गदागन हैं। अल्लाह ताला आप सबको अजर अता फरमाए। तो इसमें कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होती ऐसा कि ज़ाहिरीन परेशान करें, कोई ऐसा? परेशान करते हैं। हमारे दादा हुजूर का कहना था, हमारे मेहमान हैं, हमारे पास बैठते भी हैं और यहाँ बैठे भी, कोई हमें टेंशन नहीं है। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं। हमें उनको इज्जत देनी है मेहमान। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे मेहमान नहीं, साहिब उर्स के मेहमान हैं। अब हमारे मेहमान नहीं है जो गद्दी बड़ी दरगाह शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, अब उनके मेहमान, रहमतुल्लाह अलैह उनके मेहमान हैं। और कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अल्लाह ताला आप लोगों को अजर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजरत कहाँ से तशरीफ लाए हैं? हम इटावा से आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ चिश्ती है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हजरत कब से आ रहे हैं आप? हम अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल उर्स से आ रहे हैं, तकरीबन सन 2000 से 2003 से। जी जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि आपके वालिद साहब भी वाबस्ता थे यहीं से? जी, वालिद साहब तो वाबस्ता दूसरी जगह से थे, फरगाबाद शरीफ से, लेकिन हम जब से पढ़ाई यहाँ पे तालीम हासिल की है उसके बाद से फिर यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी हुजूर हाफिज़ बुखारी के इदारे से भी आप फैज़याब हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हुजूर हाफिज़ बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म व अमल की दुनिया में क्या शान थी उनकी, कि सदर मजलिस उलमाए अहले सुन्नत थे वो। तो उनके चाहने वालों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि दीनी मालूमात वो हासिल करें, पढ़ें लिखें, अपनी ज़िंदगी को इल्म की रोशनी में गुजारें। और हुजूर हाफिज़ बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नुकूश कदम पर चलते हुए अपनी दुनिया और आखिरत भी बनाने की कोशिश करें। तो आप चूँकि हुजूर हाफिज़ बुखारी से अकीदत रखते हैं हजरत, तो एक सवाल मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, और आप अगर उसका सही जवाब इनायत फरमाएंगे तो हम सैयद मुज़फ़्फ़र चिश्ती ऑफिशियल जो चैनल है हमारा, उसके ज़रिए हम आपकी बारगाह में कुछ तोहफ़ा भी पेश करने की कोशिश करेंगे। हज़रत ये फरमाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कितनी थी? 53 साल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और आपकी बारगाह में जो है हमारे जो है JS केयर हॉस्पिटल, ये कानपुर का एक अच्छा हॉस्पिटल है, तो उनकी जानिब से आपकी बारगाह में तोहफा पेश किया जा रहा है, आप इसको कबूल फरमाएं। और JS केयर हॉस्पिटल ये मखलूक खुदा की खिदमत बहुत अच्छे अंदाज में ये कर रहा है हॉस्पिटल। और आप में से जब कोई बीमार हो या किसी को कोई तकलीफ पेश आए तो यहाँ अगर इस हॉस्पिटल में जाएंगे और हमारे चैनल के जरिए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला खुसूसी रियायत के साथ और खुसूसी तवज्जो के साथ आपका इलाज किया जाएगा। तो आप दूसरों को भी बताएं कि अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत ही कम कीमत में खुदा के मखलूक, खुदा के बंदों की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। आप हॉस्पिटल की जानिब से कबूल फरमाएं और हॉस्पिटल की तरक्की के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया हजरत, आपने टाइम दिया। और भी हमारे पास, हमारे सामने कुछ ज़ायरीन हैं, मैं उनसे कुछ जानने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? कहाँ से तशरीफ लाए हैं? बेलापुर। बेलापुर क्या जिला पड़ता है? कानपुर देहात। अच्छा, कानपुर देहात से। कब से आ रहे हैं आप? अभी तो कल ही आए हैं इधर। अच्छा, पिछले साल से या पहली मरतबा आपका आना है? नहीं, वैसे तो आना हर उर्स में होता है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कितने साल हो गए होंगे तकरीबन? हाँ, कितने साल हो गए होंगे तकरीबन आते हुए? कम से कम 4-5 साल तो हो गए। अच्छा, 4-5 साल हो गए, माशाल्लाह। तो उर्स में आने के बाद आपने क्या तब्दीली महसूस की? यहाँ से क्या पैगाम लेकर के आप जा रहे हैं? बुजुर्गों के दर पे आए हैं तो खैर आपको दुनिया तो मिलेगी ही, बुजुर्गों के दर से सब कुछ मिलता है, लेकिन दीनी तब्दीली आप क्या लेकर के जा रहे हैं? यहाँ आज पैगाम मिला, हुजूर खतीब आस्ताना मजहर मियां साहब क़िबला का बयान हुआ, आपने सुना ही होगा। तो आप कौन सा अहद करके जा रहे हैं कि हाँ हम अब ये काम दीनी करेंगे इंशाल्लाह? कोई ऐसा काम जो सोचा हो हुजूर हाफिज़ बुखारी की बात? नमाज। अरे सुभान अल्लाह, ये तो सबसे अहम है, सबसे अहम नमाज है, बल्कि बरोज़ महशर सबसे पहले नमाज ही के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आप जरूर नमाज पढ़ें, और बुजुर्गों की से मोहब्बत का ये तकाजा भी है कि उनसे अगर यकीनी मानों में मोहब्बत करते हैं तो हम उनके बताए हुए नुकूश पर भी चलें, तब सही मोहब्बत का हक अदा होगा। वरना सिर्फ हवाई दावा कर रहा
یہ کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. تو آپ نے بہت اچھا عہد کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے اور اس کا پابند بنائے ہم سب کو بھی. میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے اندر کتنی باتیں فرض ہیں؟ وضو کرتے ہیں نا نماز سے پہلے, تو اس وضو میں کتنی باتیں کرنا ضروری ہے؟ یعنی کس کس چیز کو دھونا ضروری ہے, کتنی باتیں فرض ہیں؟ 5 نہیں 4 باتیں فرض ہیں. اور چہرہ دھونا ہے, کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے, چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا ہے. آپ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تو سب آ جائے گا, اللہ فضل فرمائے گا. نماز کے صدقے میں آپ سب کچھ سیکھ جائیں گے, عمل کرنے کی کوشش کریں گے. چلیے ٹھیک ہے, آپ نے جواب تو خیر غلط دیا. مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر کے علم دین حاصل کریں گے. تو یہ تحفہ جو ہے آپ حافظ ٹور اینڈ ٹریولز اس کی جانب سے قبول فرمائیں. کبھی بھی زیارت حرمین شریفین کے لیے جانا ہو تو ہمارے اس ٹور اینڈ ٹریولز سے آپ رابطہ کریں. اور اگر ہمارے چینل کے ذریعے سے جائیں گے تو آپ کو خصوصی رعایت بھی دی جائے گی اور اچھے سے آپ کا عمرہ یا حج مکمل کروا دیا جائے گا. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ہمارے چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کر لیں. سید مظفر چشتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے آئے ہیں جناب آپ؟ جالون سے. ماشاء اللہ, کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرزاق چشتی. عبدالرزاق چشتی, ماشاء اللہ. آپ یہاں پر کتنے سال سے آ رہے ہیں؟ 5 سال ہو گئے. اچھا, میں آپ سے کچھ دینی سوال, چھوٹا اسلامی سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت ہے؟ ہاں پوچھیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دن میں مسلمانوں کے اوپر کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ 5 وقت. ماشاء اللہ, آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. میں تھوڑا سا اور پوچھنا چاہتا ہوں, ان 5 وقت کی نمازوں کے اگر نام معلوم ہو تو آپ بالکل بتائیے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ماشاء اللہ, ہمارے صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا. اس خوشی میں آپ کو ایک رسالہ, 2 رسالے دیے جاتے ہیں. اسلامی پردہ اور امتحان کی تیاری کیسے کریں, یہ پردے کی تیاری اسلام میں اہمیت یہ پردے کی, یہ آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے. جے ایس کر ہاسپٹل کی جانب سے, سید مظفر چشتی آفیشیل کی جانب سے یہ آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے. اس کو آپ پڑھیں اور اپنے علم میں اور اضافہ کریں. اور سے حافظ بخاری میں آئے ہوئے بے شمار زائرین, آئیے ان سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نور محمد. نور محمد بھائی, کہاں سے تشریف لائے آپ؟ نانپارہ سے. ماشاء اللہ, نانپارہ سے ہمارے نور محمد بھائی تشریف لائے. آپ سے کچھ سوال کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پیدائش کی تاریخ کتنی ہے؟ 12 ربیع الاول. ماشاء اللہ, ہمارے نور محمد بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں تشریف لے کے آئے. نور محمد بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. اس خوشی میں آپ کو حافظ ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے 2 رسالے پیش کی جاتے ہیں, لیجیے. ماشاء اللہ, زائرین کا سیلاب بہت ہے. آپ سے بھی ہمارے تمام لوگ یہاں آئے ہیں, آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے آپ؟ نہیں, آستانہ آ رہی ہے پپون شریف. ماشاء اللہ, ہمارے بھائی پپون شریف کے, آپ سے کچھ سوال کر سکتے ہیں؟ جی. یہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. ماشاء اللہ, ہمارے بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمن, آپ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ ہماری بی بی آمنہ. ماشاء اللہ, بالکل صحیح جواب دیا ہے. اس خوشی میں آپ کو سید مظفر چشتی آفیشیل کی جانب سے یہ رسالہ پیش کیا جاتا ہے. اور بھی زائرین, بے شمار زائرین اور سے حافظ بخاری میں دور دراز سے تشریف لائے ہیں. ہمارے سامنے اور بھی لوگ تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی کچھ سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں آپ؟
الہ آباد سے آئے. माशाल्लाह الہ आबाद की सरजमीन से हमारे ज़ाहिरीन यहाँ तशरीफ लाए हैं. आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? हाँ इजाजत. कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या है? हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. माशाल्लाह हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया. इस खुशी में आपको सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से रिसाला पेश किया जाता है. और भी ज़ायरीनों का एक सैलाब यहाँ पर रवा और दवा है. उनसे भी कुछ सवाल जवाब, उनके तासुरात पेश करते हैं और उन लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कितने सालों से और कब से आ रहे हैं, आखिर यहाँ पर उनके आने का मकसद क्या है और यहाँ पर क्यों आ रहे हैं. माशाल्लाह हमारे सामने और भी तमाम ज़ायरीन यहाँ पर बेशुमार ज़ायरीनों का एक दम गफीर आस्ताना आलिया फपून शरीफ की गलियों में रवा दवा है और अपने मरकज अकीदत आस्ताना फपून शरीफ में वहाँ पर वो जलवा फिगर है. और यहाँ पर माशाल्लाह हमारे सामने बहुत सारे लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा. उनसे भी कुछ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू. हजरत कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? हम चकननगर से तशरीफ. हजरत क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजुद्दीन रजा. हजरत आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? जी बिल्कुल. मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या था? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस. हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो नाइब परवरदिगार हैं, बेइज़्न परवरदिगार हैं, शहंशाह अबरार हैं, मालिक कायनात हैं. और हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस हुजूर मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है. माशाल्लाह हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया. खुशी में आपको सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से ये रिसाला पेश किया जाता है. इसको पढ़ें और अपने इल्म में इजाफा करें. और भी ज़ायरीन हमारे सामने. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हजरत कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? जी रहने वाले तो से नानपारा बहराइच जिला शरीफ के रहने वाले, मगर इमामत करते हैं मुरादगंज जिला. माशाल्लाह नानपारा बहराइच से एक बहुत बड़ी तादाद आस्ताना आलिया फपून शरीफ पर अपनी अकीदत का नजराना पेश करने आती है. हमारे सामने हाफिज साहब खड़े, उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? बिल्कुल इजाजत. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हुजूर हाफिज बुखारी अलैहि रहमत व रिजवान का नाम क्या है? हुजूर सैयदी सरकार हुजूर हाफिज बुखारी अलैहि रहमत व रिजवान का नामी गिरामी इसमें गिरामी हुजूर अब्दुल समद मदूदी अलैहि रहमत व रिजवान. माशाल्लाह हमारे हाफिज साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया. खुशी में आपको ये सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से ये अत्र पेश किया जाता है. कबूल फरमाइए. और भी ज़ायरीन हमारे सामने यहाँ जलवा फिगन है और उनसे भी कुछ सवाल जवाब किए जाए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जनाब कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? मैं सीतापुर से आया हूँ. माशाल्लाह सीतापुर की सरजमीन से हमारे भाई तशरीफ लेकर आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे आका का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है. माशाल्लाह हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया. हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. खुशी में आपको ये रिसाला पेश किया जाता है. हजरत और भी तमाम ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ फरमा है. यहाँ पर उनसे भी कुछ सवाल जवाब किए जाएं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि. कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? मैं मोहल्ला इस्लाम नगर बाबरपुर से आया हूँ, जिला औरैया. आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं, दीनी सवाल? जी करिए. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर दिन में जो 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, उन नमाजों के नाम क्या है? उन 5 नमाजों का नाम एक फजर की नमाज है, जोहर की नमाज है, मगरिब, असर, इशा. माशाल्लाह हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया. जो 5 वक्त की नमाज है मुसलमानों पर फर्ज की गई, उन तमाम नामों के आपने बिल्कुल सही नाम बताए हैं. हजरत आपको ये किताब पेश की जाती है, इसको पढ़िए और अपने इल्म में इजाफा कीजिए. और भी तमाम ज़ायरीन हमारे सामने मौजूद है, उनसे भी कुछ सवाल किए जाएंगे. आप लोग कुछ सवाल अगर करना चाहें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कहाँ से आए हैं आप? जी आजाद मुरई से आए हैं. क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम कलीम है. मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? ये करिए. कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? आप जनाब का आप हजरत का नाम है. आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. माशाल्लाह हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया. खुशी में आपको JSK हॉस्पिटल की जानिब से ये किताब पेश की जाती है. कबूल फरमाइए. जी आपसे सवाल पूछ कर सकते हैं? जी आपसे सवाल कर सकते हैं. आप ये बताइए, आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? हमारे नबी के एक बेटे थे.
एक बेटे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बस इब्राहिम। 4 बेटे थे, 4 बेटे थे। 4 बेटे थे और 3 बेटियां थी। चलिए अच्छी बात है, आपने हमारा इम्तिहान भी लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नौमान। कहाँ से आए आप? बाबरपुर से। आपसे कुछ पूछ सकते हैं? पहला कलमा सुनाइए आप। पहला कलमा तैयब तैयब मन पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, हमारे ये छोटे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। पहला कलमा तैयबा इस्लाम की जो बेसिक चीज है। इस खुशी में आपको ये हाफिज स्टूडेंट ट्रैवलर्स की जानिब से ये तस्वीर पेश की जाती है। अब आइए और आगे चलते और ज़ाहिरीन हुज़ूर हाफिज बुखारी में हम लोग यहाँ पर और भी ज़ाहिरीन यहाँ पर आराम फरमा है। यहाँ पर ज़ाहिरीनों के लिए रैन बसेरा और टेंट का इंतजाम किया गया है और यहाँ पर भी ज़ाहिरीनों से उनके तासुरात लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ ज़ाहिरीन हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी में यहाँ जलवाबार है और यहाँ पर अभी आराम कर रहे हैं। खाना खा करके फिर अभी हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी की महफिलों में यहाँ जाएंगे। मैं यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं रहने वाला नबीपुर का हूँ, जिला जालौन, और मैं गुजरात से आया हूँ। माशाल्लाह, हमारे भाई गुजरात से तशरीफ लाए हैं। आपसे कुछ दीनी सवाल करना चाहते हो, इजाजत है आपकी? जी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितनी थी? कितनी उम्र आपकी जिंदगी इस दुनिया में तशरीफ? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक 63 साल की थी। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से ये पेश किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ ज़ाहिरीन और हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी में यहाँ जलवाबार हैं, उनसे भी कुछ सवाल जवाब किए जाएं। ये हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हजरत हमारे नबी के वालिद साहब का क्या नाम है? हमारे नबी के वालिद साहब का नाम अब्दुल्ला। जी बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे नबी के वालिद साहब का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इस खुशी में आपको हाफिज स्टूडेंट ट्रैवलर्स की जानिब से ये रिसाला पेश किया जाता है। और भी ज़ाहिरीन यहाँ पर हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी में आए, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। ये हमारे क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई, आप कहाँ से आए हैं? जालौन। जालौन से। आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? जी बेशक। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो दिन में 5 वक्त की नमाजें हैं, इशा की नमाज, उस इशा की नमाज में कितनी रकातें हैं? 17। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। उन रकातों में की तादाद जो है सुन्नत और फर्ज मालूम है आपको? 4 रकात फर्ज जी और 8 रकात सुन्नत। जी, हमारे छोटे भाई ने थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन तब भी आपको एक तोहफा पेश किया जाता है। सैयद मुजफ्फर चिश्ती की जानिब से ये आपको तोहफा दिया जाता है। और भी तमाम ज़ाहिरीन की हमारे नबी की ज़ाहिरी जिंदगी कितनी थी? हमारे नबी की 63 साल।
माशाल्लाह हमारे ये नौनिहाल बच्चे, इन्होंने हमारे नबी अकरम की सीरत को ऐसा मुताला कर लिया और तब नबी की ये तारीख को बता दिया कि हमारे नबी की जिंदगी 63 बरस की थी। ये आपको ये तोहफा दिया जाता है तस्वीर। वालेकुम अस्सलाम। और भी हमारे ज़ायरीन, उनसे भी तासरात लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हजरत तशरीफ लाए हैं आप? जल्लापुर सिकंदरा से। जल्लापुर से। माशाल्लाह हजरत, आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विलादत क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर से। माशाल्लाह हमारे भाई ने भी करते हैं। छोटा सवाल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताओ कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? नबीपुर से। नबीपुर से। जालौर जिला जालौर। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि दिन में मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? दिन में पूरे दिन में मुसलमान कितने टाइम की नमाज पढ़ते हैं? 5 टाइम कहाँ से आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? बर्दिया बहराइच से। माशाल्लाह बहराइच शरीफ से हमारे भाई तशरीफ लेकर के आए हैं। आप तो कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 63 साल। माशाल्लाह। अली मोहम्मद अली भाई, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? जी इजाजत है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि तो पढ़िए तस्वीर कलमा तैयबा और जो आपने सुनाया इसमें और सवाब मिलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है भाई आपका? अमीर हमजा। अमीर हमजा भाई, कहाँ से तशरीफ लाए? अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी जिंदगी 63 बरस की थी, हमारे ये नौजवान नौनिहाल बच्चे, इन्होंने हमारे नबी अकरम की तारीख को इतना गहरे से मुताला किया है कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी जिंदगी 63 बरस की थी, उसका सही जवाब दी। इस खुशी में आपको ये किताब हाफिज स्टूडेंट टैबलेट्स की जानिब से दी जाती है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत कहाँ से आए हैं आप? सरिया। अफसरिया से आए हैं। आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? बिल्कुल इजाजत है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी जिंदगी थी वो कितनी बरस की रही है? 63 साल। माशाल्लाह, ये हमारे जनाब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी जिंदगी थी वो 63 बरस की थी। इस खुशी में आपको ये तोहफा दिया जाता है सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से। ये तोहफा आपको दिया, इसको पढ़िए और अपने इल्म में इजाफा फरमाएं। और भी ज़ायरीन हमारे यहाँ और हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी में यहाँ तशरीफ फरमा है, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? सिरसियापुर से, रूरा के पास। माशाल्लाह, आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं कि पूरे दिन में मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त की नमाजें फर्ज है? 5 नमाज। माशाल्लाह, हमारे दादा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से ये रिसाले पेश किए जाते हैं। माशाल्लाह, ये उर्स हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी में आने वाले ज़ायरीनों की एक बहुत बड़ी तादाद उर्स हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी में यहाँ नौजवान से लेके उम्र रसीदा तक हज़रात यहाँ पर उर्स हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी के जो कलमे तैयबा होते हैं उसमें दूसरा कलमा अगर आप सुना रहे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरा कलमा शहादत सादत माना गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से ये तरह आपको पेश किया जाता है। अब आइए और आगे चलते हैं और गलियों में चलते हैं। उर्स हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी में आए हुए तमाम ज़ायरीन के तासुरात हमारे उर्स हुज़ूर हाफ़िज़ बुखारी में आए हुए ज़ायरीनों में से हमारे एक दादा यहाँ आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए दादा? जसवंत नगर से। माशाल्लाह, जसवंत नगर इटावा से हमारे दादा तशरीफ लाए हैं। आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है? इजाजत है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि दिन में मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। उन नमाजों के नाम क्या क्या हैं? फजर, जोहर, असर,
मगरिब ईशा। माशाल्लाह, हमारे दादा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको आपसे स्टूडेंट ट्रैवलर्स की जानिब से ये इत्र पेश किया जाता है। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आइए आगे चलते हैं, हमारे सामने और भी तमाम ज़ायरीन यहाँ जलवाबार हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं भाई आप? दलील नगर। दलील नगर से हमारे भाई तशरीफ लाए हैं। और आपसे हम एक सवाल करना चाहते हैं कि पूरे महीने में मुसलमान जो रमजान मुबारक के रोजे रखते हैं, उस रोजे की अगर आपको नियत मालूम हो तो आप बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, वो रमजान मुबारक अभी आए नहीं तो आज जहन में नहीं रहता। आप वो सहरी के वक्त टाइम जो करते हैं रमजान। माशाल्लाह, हमारे ये नौजवान भाई इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। रमजान मुबारक में जो रोजे की नियतें की जाती हैं, इस खुशी में आपको हाफिज स्टूडेंट ट्रैवलर्स की दिल्ली से माशाल्लाह दिल्ली की सरजमीन से हमारे भाई तशरीफ लेकर के आए हैं। आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? जी। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बरस जिंदगी रही है? 63 साल। माशाल्लाह, हमारे हजरत ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 बरस ज़ाहिरी जिंदगी रही। इस खुशी में आपको हाफिज स्टूडेंट ट्रैवलर्स की जानिब से ये रिसाले पेश किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये और आगे चलते हैं और लोगों के तासुरात लेते हैं कि आखिर वो उर्स हुजूर हाफिज बुखारी में यहाँ आ रहे हैं। ये सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से कुछ सवाल जवाब की यह सेशन रखा गया है। ये थोड़े छोटे मोटे सवाल जवाब उर्स हुजूर हाफिज बुखारी में आए हुए ज़ायरीनों से किया जाता है और उनको तोहफे ताहिफ पेश किए जाते हैं। उर्स हुजूर हाफिज बुखारी में लोग आने का मकसद सिर्फ उर्स में आना नहीं बल्कि लोगों की इस्लाह भी, उनके अकायद की इस्लाह भी की जाती है यहाँ पर। और आइए यहाँ पर लोग अपने अपने अकीदत का नज़राना भी पेश कर रहे हैं। और आइए लोगों से यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कहाँ से तशरीफ लाए? मैं ग्वालियर से आया हूँ। माशाल्लाह, ग्वालियर की सरजमीन से हमारे भाई तशरीफ लेकर के आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी पूछिएगा। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पूरे दिन में मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त की नमाज़ फर्ज है? 5 वक्त की। माशाल्लाह, हमारे हज़रत ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और इशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? इशा की नमाज में 17 रकात। माशाल्लाह, हमारे हज़रत ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको ये सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से ये इत्र पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह, ये हमारे डॉक्टरेट हज़रात की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जलवाबार है। और यहाँ पर ये मुफ्त में और उससे हुजूर हाफिज बुखारी में आए हुए ज़ायरीन की खिदमत के लिए यहाँ लगे हुए हैं और अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल फी सबीलिल्लाह और से हुजूर हाफिज बुखारी में के मौके पर ये अपनी अकीदत का नजराना पेश कर रहे हैं। उनसे कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? माशाल्लाह, लखनऊ से हमारे डॉक्टर साहब तशरीफ लेकर गए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इंतजार अली। माशाल्लाह, डॉक्टर इंतजार अली साहब लखनऊ की सरजमीन से यहाँ पर उससे हुजूर हाफिज बुखारी की में आए हुए ज़ायरीन की के लिए खिदमत कर रहे हैं। आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी जो थी वो कितने बरस रही? 63 साल। माशाल्लाह, हमारे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहिरी जिंदगी थी वो 63 बरस की रही है। इस खुशी में आपको हाफिज स्टूडेंट ट्रैवलर्स की जानिब से ये रिसाला पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भी उर्स हुजूर हाफिज बुखारी में आए हुए ज़ायरीन का एक बहुत भारी तादाद उर्स हुजूर हाफिज बुखारी फकू शरीफ में जलवाबार है और उनसे भी कुछ तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर की सरजमीन से हमारे हज़रत तशरीफ लेकर के आए। उनसे भी कुछ सवाल जवाब करके इजाजत चाहते हैं। इजाजत है? जी जी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी अगर आपको मालूम हो तो बताइए। हजरत मक्की और मदनी दिवाली 10 साल और 53 साल। हमारे भाई ने बता दिया। मदीना शरीफ। हमारे भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गए लेकिन जवाब बता ही दिया है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी जो थी वो 53 साल की रही है और जो मदनी जिंदगी है वो 10 साल थे। मदीने मुनव्वरा में आप दलवाबार रहे हैं और इस खुशी में आपको हाफिज स्टूडेंट ट्रैवलर्स की जानिब से ये रिसालत पेश की जाती है।
माशाल्लाह और से हुजूर हाफिज बुखारी में आए हुए ज़ायरीनों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आपको देखने को नजर आ रही है और भी लोग उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। और आप हजरात को दीनी मालूमात देने के लिए सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से आप हजरात को दीनी मालूमात दी जाती है। फेसबुक पर सैयद मुजफ्फर चिश्ती, यूट्यूब पर आप सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल डालकर उसको सब्सक्राइब करें और आस्ताना आलिया फपून शरीफ की दीनी मालूमात को आप उनकी फपून शरीफ का जो पैगाम है उसको सुन सकते हैं। हमारे पास कुछ नौजवान भाई लोग खड़े हैं, उनसे भी कुछ तासुरात उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। भाई कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? जी मैं फपून शरीफ से हूँ। माशाल्लाह हमारे भाई ये फपून शरीफ के आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पूरे दिन में मुसलमानों के ऊपर जो 5 वक्त की नमाज फर्ज है उसमें मगरिब की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 17। मगरिब की नमाज, मगरिब की 7। माशाल्लाह हमारे भाई ने सही जवाब दिया। मगरिब की नमाज में 7 रकातें होती हैं। इस खुशी में हाफिज स्टूडेंट ट्रेवलर्स की जानिब से ये आपको अत्र पेश किया जाता है। बहुत शुक्रिया। और भी ज़ायरीन हमारे पास यहाँ है और उनसे भी कुछ तासुरात लिए जाते हैं और भी कोई अपनी बात अगर रखना चाहे आइए आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से उनके तासुरात लेते हैं। और से हाफिज बुखारी में आए हुए ज़ायरीनों की एक बहुत बड़ी तादाद है, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? चौरा शरीफ से। चौरा शरीफ कालपी से आप भोगनी से आए हैं। आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पूरे दिन में मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, उसमें जोहर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 12। माशाल्लाह हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जोहर की नमाज में 12 रकातें होती हैं। ये सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से ये तरह आपको दिया जाता है। और भी ज़ायरीन यहाँ पर से हुजूर हाफिज बुखारी में है, उनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं आप? डकोर से आए हैं आप। आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम था। माशाल्लाह हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको हाफिज स्टूडेंट ट्रेवलर्स की जानिब से ये पेश किया जाता है। और भी ज़ायरीन हमारे पास यहाँ तलबाबार है और ये हमारे नौजवान छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं और हुजूर हाफिज बुखारी में आपसे ये पूछना चाहते हैं कि दूसरा कलमा सुनाइए। दूसरा कलमा शहादत माने गवाही दें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस खुशी में आपको ये इत्र और ये रिसाला पेश किया जाता है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ये हमारे चाचा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? डकोर से हमारे ये चाचा तशरीफ लाए हैं। आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? इजाजत है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जो दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है उसमें असर में कितनी रकातें होती हैं? 8। और उन रकातों के नमाजों के नाम क्या है? 4 फर्ज 4 सुन्नत। माशाल्लाह हमारे चाचा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको ये सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से ये पेश किया जाता है। और भी ज़ायरीन हमारे पास यहाँ जलवाबार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहाँ से तशरीफ लाए भाई? कस्बा जाने से, मुरादगंज के पास। माशाल्लाह आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? इजाजत है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो दिन में मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है उसमें फजर में कितनी रकातें होती हैं? 4। और उन रकातों के नाम क्या क्या है? 2 सुन्नत 2 फर्ज। माशाल्लाह ये हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। खुशी में आपको ये हाफिज स्टूडेंट ट्रेवलर्स की जानिब से ये तस्वीर और ये रिसाला पेश किया जाता है। और भी हुजूर हाफिज बुखारी में यहाँ ज़ायरीन यहाँ जलवाबार है और उनसे भी कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे कि और से हुजूर हाफिज बुखारी में का पैगाम अगर ये हमारे सामने और भी लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? हाँ बोलो। हम ये पूछना चाहते हैं कि पूरे दिन में मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5। माशाल्लाह हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको ये
सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से ये इत्र पेश किया जाता है। जज़ाकल्लाह। और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व कहाँ से आए हैं आप? हबून शरीफ से। माशाल्लाह, फपून शरीफ से हमारे भाई हैं। इनसे भी कुछ सवाल करते हैं कि हम ये पूछना चाहते हैं कि पूरे दिन में जो मुसलमानों के ऊपर नमाज फर्ज है उसमें जोहर में कितनी रकातें होती हैं? जोहर में 12 रकातें होती हैं और दो मिला के जुमे की 14 और जोहर में 12। माशाल्लाह, हमारे ये जनाब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और थोड़ा आगे बढ़ के जवाब दिया है। और इस खुशी में आपको JSK हॉस्पिटल की जानिब से ये तस्वीर और इत्र पेश किया जाता है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। और भी उससे हुजूर आपने बुखारी में आए हुए ज़ायरीन हैं, उनसे भी कुछ उनके तासुरात लिए जाते हैं। माशाल्लाह। और भी उससे हुजूर आपने बुखारी में आए हुए ज़ायरीन हमारे सामने मौजूद है, उनसे भी कुछ सवाल जवाब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? मैं भिंड से। भिंड से हमारे भाई तशरीफ लाए, उनसे एक सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? जी बिल्कुल। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पूरे दिन में जो मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है उसमें इशा में कितनी रकातें होती हैं? 17 रकातें होती हैं। अच्छा माशाल्लाह। उन 17 रकातों में फर्ज कितने होते हैं? 4 फर्ज होते हैं। माशाल्लाह, हमारे भिंड से आए हुए भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको सैयद मुजफ्फर चिश्ती की जानिब से ये आपको हदिया पेश किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और भी जायदीन हमारे सामने यहाँ जलवाबार है, अभी उनसे भी कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं, उसके तासुरात किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? अब्दुल्लापुर से। अब्दुल्लापुर से। आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि पूरे दिन में मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। उन नमाजों के नाम क्या क्या है? फर्ज, जोहर, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको JSK हॉस्पिटल की जानिब से ये हदिया पेश किया जाता है। और भी जायदीन हमारे सामने यहाँ जलवाबार हैं और उनसे भी कुछ सवाल जवाब उनके तासुरात किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से तशरीफ लाए बाबा? हम डकोर से ले आए। हमारे दादा डकोर से यहाँ तशरीफ लाए हैं, इनसे भी सवाल कर सकते हैं आपसे, दीनी सवाल? बिल्कुल करो। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? मोहम्मद साहब नाम है दुनिया का और अहमद। माशाल्लाह, हमारे दादा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस खुशी में आपको हाफिज स्टूडेंट एबलेस की जानिब से ये हदिया पेश किया जाता है। ये क्या है? ये तस्बीह है और ये इत्र है। तस्बीह, इससे कलमा पढ़ो और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़िए, उसमें अपने इल्म में इजाफा करिए। अस्सलाम वालेकुम। भाई कहाँ से आए हैं आप? भिंड से हमारे दादा भाई तशरीफ लेकर के आए। आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पूरे दिन में मुसलमानों के ऊपर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की। और नमाजों के नाम क्या क्या है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको आपके स्टूडेंट एबलेस की जानिब से ये हदिया पेश किया जाता है। और भी जायदीन हमारे सामने यहाँ जलवाबार है, उनसे भी कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आए हैं आप? बकेवर से। बकेवर से हमारे भाई तशरीफ। आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, इजाजत है आपकी? कि मुसलमानों के ऊपर जो रमजान मुबारक में रोजे फर्ज है उनकी तादाद कितनी है? 30। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। रमजान मुबारक के 30 रोजे मुसलमानों के ऊपर फर्ज है। इस खुशी में आपको ये हदिया पेश किया जाता है। और से हुजूर आपने बुखारी में आए हुए तमाम जायरीनों से उनके तासुरात लिए जाते हैं और भी तमाम जायरीनों से आगे बढ़कर उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आए आप? बकेवर से हमारे भाई तशरीफ आए हैं, उनसे आपसे सवाल ये करना चाहते हैं, इजाजत है? इजाजत है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, हमारे भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस खुशी में आपको ये तोहफा हाफिज स्टूडेंट एबलेस की जानिब से दिया जाता है।
اور بھی زائرین ہمارے سامنے اور سنور آپ سے بخاری میں آئے ہیں، ان سے بھی کچھ سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کہاں سے تشریف لائے؟
یعنی جو ہمارے نبی اکرم کی دن میں کتنے وقت کی نماز ہے فرض ہے؟ فرض 5 وقت کی نماز فرض ہے. ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا. اور پہلا جو سوال جو ظاہری زندگی تھی وہ 63 برس کی تھی, وہ ذہن میں نہیں تھا, لیکن دوسرا سوال صحیح دیا. اس خوشی میں آپ کو یہ دیا جاتا ہے. اور بھی تمام زائرین ہمارے سامنے ہیں, اور ان سے بھی کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں. بھیا ہم سے تو سنو, بھیا ہم سے تو سنو. اور بھی یہ نوجوان بچے ہمارے سامنے یہاں تشریف فرما ہے, ان سے بھی کچھ سوال جواب کرنے کی کوشش کروں گا, اور ان سے بھی کچھ پوچھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہو بھائی آپ؟ فپون شریف کا ہی ہوں. یہ فپون کی ہمارے بھائی یہاں ہیں, ان سے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ اچھا, ہمارے نبی کی زندگی کتنی تھی, ظاہری زندگی؟ ہمارے نبی کی زندگی 63 سال تھی. ماشاءاللہ یہ ہمارے چھوٹے بھائیوں نے بالکل صحیح جواب دیا. ہمارے نبی اکرم کی ظاہری زندگی 63 برس کی تھی. اس خوشی میں آپ کو یہ تصویر دی جاتی ہے. اور بھی ہمارے بھائی لوگ اور سے حضور حافظ بخاری میں یہاں آئے ہیں, ان سے بھی کچھ سوال جواب کیے جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی میں ممبئی ناسک سے آیا ہوں. ماشاءاللہ یہ ممبئی کی سرزمین سے عرص حضور حافظ بخاری میں یہاں جلوہ بار ہونے کے لیے آئے ہیں. یہ عرص حضور حافظ بخاری میں ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر اپنے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں. ان سے بھی کچھ سوال جواب کرتے ہیں. کہاں سے, کیا آپ کا نام کیا ہے؟ دانش خان چشتی. دانش خان بھائی, آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم کی مکی زندگی کتنی تھی؟ 53 سال. ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی وہ 53 سال کی تھی. اس خوشی میں آپ کو حافظ اسٹوڈنٹ ٹریولرز کی جانب سے یہ ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. اور آگے چلتے ہیں, اور بھی لوگوں سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کہاں, کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے آئے بھائی آپ؟ بکیور سے. آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پورے دن میں مسلمانوں کے اوپر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5. ان نمازوں کے نام کیا کیا ہے؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ماشاءاللہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے بالکل صحیح جواب دیا. اس خوشی میں آپ کو یہ ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. اور بھی زائرین اور سے حضور حافظ بخاری میں یہاں تشریف فرما, ان سے سوال کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے بھائی آپ؟ رسول آباد کانپور سے. ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, اجازت ہے آپ کی؟ جی پوچھیے, اگر جواب دے سکتے دیں گے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت, 2 رکعت فرض. ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا, جو رسول آباد کی سرزمین سے آئے ہیں. اس خوشی میں آپ کو یہ حافظ اسٹوڈنٹ ٹریولرز کی جانب سے یہ ہدیہ دیا جاتا ہے. شکریہ. اور بھی زائرین ہمارے یہاں عرص حضور حافظ بخاری میں یہاں تشریف فرما ہے, ان سے بھی کچھ سوال جواب کیے جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے ہیں بھائی آپ؟ یہ ہمارے بھائی فپون شریف کی رہنے والے ہیں. آپ سے سوال کرنے کی اجازت ہے آپ کی؟ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ والد صاحب کا نام اچھا, ہمارے نبی کی ظاہری زندگی کتنے برس کی تھی؟ ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے جو پہلا سوال ہم نے پوچھا, ہمارے نبی کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ ہے, اور لیکن دوسرا سوال آپ نے بالکل صحیح دے دیا کہ ہمارے نبی کی جو زندگی 63 برس کی, اس خوشی میں آپ کو یہ ہدیہ دیا جاتا ہے. اور بھی یہ نوجوان بچے ہمارے سامنے یہاں تشریف فرما ہے, ان سے بھی کچھ سوال جواب کیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے آپ؟ بیلاپور سے. ماشاءاللہ بیلا پور سے ہمارے یہ نوجوان بچے یہاں تشریف فرما اور حضور حافظ بخاری میں. آپ سے ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں دوسرا کلمہ سنائیے. یہ ہمارے نوجوان بچے ابھی ذہن میں نہیں ہے دوسرا کلمہ, لیکن مسلمان بچوں کو سیکھنا چاہیے یہ کلمے. اسلام کی توحید, اسلام کی بیسک چیز اسلام کا کلمہ, اسلام. ہم آپ سے یہ السلام علیکم. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ فپون شریف سے. ہم آپ سے دوسرا کلمہ سننا چاہتے ہیں, آپ کو یاد ہے؟ سنائیے. دوسرا کلمہ شہادت سالمان واحد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ.
ये हमारे भाई ने कलमा तो सुना लेकिन थोड़ा गलती वगैरह थी, लेकिन तब भी आपको ये तोहफा दिया जाता है। सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से आपको ये हदिया पेश किया जाता है। सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल की जानिब से ये सवाल जवाब का सेशन रहा है ताकि लोगों की इस्लाह भी हो सके। उससे हुजूर हाफिज़ बुखारी में आने का मकसद सिर्फ अकीदत और एहतराम के साथ साथ और कुछ पैगाम और शरीयत और सुन्नत की बातें भी लोगों तक पहुंचाना है। और हुजूर हाफिज़ बुखारी में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि शरीयत को पर लोग अमल करें और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करें। और शरीयत पर अमल करना ही इस्लाम की पहचान है। मुसलमान होने के लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करना, नमाजों की पाबंदी करना, यही पैगाम हुजूर हाफिज़ बुखारी का था। और हम अकीदतमंदान औलिया किराम और बुजुर्गों के मानने वाले हैं। इन बुजुर्गों का यही मिशन है कि मुसलमान शरीयत पर अमल करें और बेहयाई से मुसलमान बाज आए। सैयद मुजफ्फर चिश्ती ऑफिशियल पेज, ये फेसबुक पेज पर आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ताकि आस्ताना आलिया पप्पू शरीफ की तमाम जानकारी आप तक मौसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।